workshop, right? So understood the Yes, workshop to ma'am. all of you? Yes, ma'am. Okay. Now we'll discuss about the exhibition, right? Yes, So ma'am. exhibition are the familiar item in our environment today. When we go around an exhibition, our attention is the often focused on a group of the object and the material that are displayed according to the deliberate plan. So whatever your plan, like that, whatever your theme, according to that, we have to organize one exhibition. According to that, we have to display the that model, okay, which are prepared by the student. Okay, so this is the exhibition. Exhibition is a kind of a open place, okay, where you are seen and you have to observe the different theme on a different topic on the basis of the particular theme. Means एग्जीबिशन में ये होता है कि हमें एक टॉपिक दिया जाता है, उसके बेसिस में हम मॉडल प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, और उस टॉपिक को डिफरेंट डिफरेंट वे से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अंडरस्टूड? जैसे फॉर एग्जांपल आपको एग्जीबिशन दी गई है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की, so everyone having their own ideas, okay, and whenever we have to observe the materials of the exhibitions model, like that how they will prepare, means how the model are prepared, what the model are explaining without explanation of the person who are preparing that model. The model should be a self explanatory, ठीक है। तो हमें एक्चुअली एग्जीबिशन क्यों एक्सपोज करवाई जाती है? टू गेट अ डिफरेंट आइडियाज, टू अंडरस्टूड द थीम, टू अंडरस्टूड द टॉपिक, ओके। यानी कि हम किसी पर्टिकुलर चीज को डिफरेंट वे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने कहा हार्ट के एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, हार्ट के एनाटॉमी फिजियोलॉजी तो एक ही है ना, इट्स अ सिंगल, but the way of presentation, the way of explanation of the ideas is a different, right? So the value of the exhibition is it is one of the effective mode of mass communication, the instruction on a large scale, okay. So when we are instruct something, when we are means spread some one message to the mass communication, so this is one of the ideas, because हम क्या करते हैं, डिस्प्ले कर देते हैं, एक पर्टिकुलर प्लेस में डिस्प्ले किया जाता है डिफरेंट मॉडल्स को, वर्किंग मॉडल, नॉन वर्किंग मॉडल्स, okay, different things also, so that everyone else came there and they have to observe, okay, to if they have any doubt they will ask the questions to that person who are prepared that particular thing, चाहे वो मॉडल है या फिर कोई भी आपने एक्सपोजर किया है, ठीक है। the self activity is the fostered on the part of those who take part, ठीक है। तो जो उसमें पार्ट लेते हैं उनकी क्या है, सेल्फ एक्टिविटी फोकस होती है, इनहांस होती है, आपकी ऑब्जर्वेशन पावर इंक्रीज होती है, outcome of the different activities and the process are well understood. Okay, the team spirit is encouraged. Parents and the visitor can have an idea of the work done by the student. So generally, we are enhancing the creativity among the student. That's why we are organizing the exhibitions, okay, and we invite the different person to participate in the exhibition and observe the exhibition. And you know what, also we have to, for the motivation of the student, we have to give the some reward to the student who are having a best ideas toward the particular topic, okay. The way of explanation, I told you that the model, whatever you're preparing on the basis of the topic, it should be a self explanatory, no need to any explanations, okay। तो टॉपिक तो सबका सेम है, थीम सबकी सेम है, बट हम क्या करते हैं, स्टूडेंट को एक लर्निंग देते हैं, अपने क्रिएटिव अपनी ब्रेन स्टॉर्मिंग की, अपने आइडियाज को एक्सप्लोर करने की, क्रिएटिविटी को इनहांस करने की, मोटिवेट करते हैं, उन्हें कॉन्फिडेंस डेवलप करवाते हैं, ठीक है। Arrangement, how you will arrange the exhibition, the popular and the difficult and the easier type of the exhibition must be kept intermixed, ठीक है। यानी कि हमें ऐसी एग्जीबिशंस करनी है जो पॉपुलर यानी कि
जैसे जनरली सब लोग करवाते हैं कि वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट थीम होनी चाहिए, एक डिवाइडेशंस होनी चाहिए, ठीक है, एक और जो डिस्प्ले करते हैं हम मॉडल्स को वो एक सिस्टमैटिक वे में होना चाहिए, ठीक है। इट इज डिफिकल्ट इन द सेंस डिफिकल्ट लाइक आपको एक थीम ऐसा देना है जिसमें आप सारी चीजें इन्वॉल्व कर सकें, ठीक है। इजियर टाइप ऑफ द एग्जीबिशन मस्ट बी कीप इन द माइंड, और easier type of exhibitions means the way of explanation is easy to understood. By observation only you have to understood. Okay. Too many exhibits should not be kept in a room. बहुत ज्यादा exhibit यानी कि जो आपने मॉडल्स वगैरह बनाए हैं वो सिर्फ एक रूम में नहीं होने चाहिए. 1 or 2 is sufficient. ठीक है, और related to the topic only sufficient. It's not should not be mixed. कि exhibit must be kept in a well lighted place, और जो भी आपने मॉडल प्लेस किया है वो well light place में होना चाहिए, so that कि आप properly उसे visualize करो, जो भी ऑब्जर्वर है या evaluator है. It is better to put one single idea in an exhibit, so should not mix up the more idea in one particular theme. आपने एक मॉडल बनाया उसमें सब कुछ डाल दिया, ठीक है, तो ऐसा नहीं. आपको एक मॉडल को एक मीन्स एक मॉडल सिंगल मॉडल रिप्रेजेंटिंग द सिंगल टॉपिक. ओके, the colorful and the moving exhibits will attract the attention. Okay, that means जो working models होते हैं it more attractive and the colorful is the more attractive. Okay, rather than the non-working models. Entire the campus should be clean and should be present the festive appearance. Is a kind of the festivals like this is slots लगता है ना festivals में, as like in our college when we are organizing the exhibition actually not organizing for the study purpose, also we are organizing in the extracurricular activities. We are celebrating the Diwali festival, and that time we have to whatever the creativity we having, like someone are very interested in a cooking and making the cookies and different kind of dishes also, and we are display all these things during Diwali fete. ओके, तो उस टाइम पे क्या होता था हम लोग के एक जो कैंपस था इज लाइक अ फेस्टिवल अपीयरेंस की, हम कोई फेस्टिवल सेलिब्रेशंस कर रहे हैं. एज लाइक एग्जीबिशन में भी ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल कोई साइंटिफिक एग्जीबिशन हमने किया है तो डिफरेंट डिफरेंट प्लेस में डिफरेंट डिफरेंट आपके मॉडल डिस्प्ले होते हैं. हर एक मॉडल का अपना एक आइडिया होता है, हर एक मॉडल का अपना एक अपीयरेंस है, ठीक है, एक वे ऑफ एक्सप्लेनेशन है. बहुत कलरफुल होते हैं, कुछ वर्किंग होते हैं, कुछ नॉन वर्किंग्स होते हैं, ठीक है. So it's a look like in a festive appearance. So like that you have to arrange the exhibition. What is the planning? So put only one central idea. So whenever you have to organize one exhibition, you have to give one single theme. Okay, so the observer should not be confused in between the two or more. The place your exhibit where it is easy viewable. दैट मीन एक ऐसा प्लेस होना चाहिए जहां से हर एक चीज इजीली विजुलाइज हो रही हो, आपको इजीली दिखाई दे रही हो, ठीक है. आपको बहुत हौच पौच नहीं करनी है, एक ही जगह में बहुत सारे मॉडल डिस्प्ले नहीं करने हैं, ठीक है. एन एग्जिबिट इज सीन नॉट रीड. Okay, make your label short and simple. Label should be informed and legible. Motion attract attention. तो जो भी आप लेबल वगैरह लगाते हो, ठीक है, वो सिंपल होना चाहिए. ऐसे नहीं कि पूरे एग्जीबिशन जो आपने मॉडल बनाया उसमें बड़ा बड़ा अपना लेबल लिख दिया है अपने अपने बारे में या फिर पर्टिकुलर मॉडल्स के बारे में. नो, नॉट लाइक दैट. तो सिंपल वे में, एक शॉर्ट वे में आपको लेबल लगाना है उसमें. ओके, and we have to try to make a exhibit like the we have to see more rather than to read more, because हम किस चीज के मीन्स टूवर्ड अट्रैक्ट होते हैं. कोई ऐसी चीज जिसमें क्रिएटिविटी हो. अंडरस्टूड. आपको मैं डिस्प्ले कर दूं चार्ट, और एक रूम में चार्ट डिस्प्ले करने के बाद मैं आपको बोलूं देन you should go there and you have to observe how many charts are there, or what are their creativity, what are their messages. Okay, और एक अनदर रूम में सेंड करूं जहां पे कि आपको सिर्फ मॉडल डिस्प्ले किए गए हैं. सो बोथ द रूम व्हाट इज द डिफरेंस. जो जहाँ पे मॉडल डिस्प्ले किए गए हैं, ठीक है, याद है कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट क्रिएटिविटी डिस्प्ले की गई है, वो चीजें आपको ज्यादा याद रहेंगी rather देन कि जो आपने रिटर्न लिखा हुआ है, ठीक है. द मोशन अट्रैक्ट द अटेंशन. अंडरस्टूड द एग्जीबिशन.
Yes, ma'am. Okay, now the program instruction. So program instruction, it is a device to control the student behavior and help them to learn without the direct supervision of the teacher. Okay, the instruction is the purposeful, orderly control, sequencing and experience reach a specific goal. So program controller क्या है? Program is a device to control the student. Program एक ऐसा device है जिससे हम मीन्स स्टूडेंट को इनडायरेक्ट वे में सुपरवाइज कर सकते हैं, उनके बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं, हेल्प देम टू लर्न विदाउट डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ द टीचर। क्या है कि यहाँ पे टीचर प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद भी क्या रहता है, हमारा उनके बिहेवियर में, उनकी लर्निंग में कंट्रोल रहता है। ठीक है, इसका पर्पस क्या है? द इंस्ट्रक्शन पर्पस इज ऑर्डरली कंट्रोल, सीक्वेंसिंग, एक्सपीरियंस, टीचर स्पेसिफिक टू गोल। तो actually it's a kind of the instruction purposeful that in that we have to instruct the student, okay, and we have to control the all the scenario whatever we have to teach to the student, okay, to reach a goal. So program instruction, it is a presentation of the material in the step-by-step procedure with the knowledge of the result and the possibility of the different course of the thought, according to Bruce Frederick. Another is the program instruction in the process of the arranging and the material to learn into a series of sequence steps. Usually it moves the student from the familiar background into a complex and a new set concept, principle and understanding. So what do you understand with the program instructor? The program instructor is a process in which we have to set our ideas in a series, step by step, okay? So that, and it is very familiar to the student, okay, to understood the new set of concept, what are the principle they should understood through the program monitor, okay. Program are the material on which the student learn. These program can be used with the many types of the student subject earlier by themselves. The name self-instruction role in the combination with the other instruction technique. Okay, so what is the principle of the program instruction? Is the principle of the small step, principle of the active response responding, principle of the immediate reinforcement, the principle of the self-pacing, and the principle of the student testing. Advantage of the program instruction is the student is the kept active and alert. Teacher get the relief of doing ordinary job, and he or she can play a role. Social and emotional problem can be eliminated. Program instruction make the learning instructing. Every student can work at his own place, make complex of the concept can be known. Okay, so program instructor क्या है? Program instruction is a kind of, we can say that is a device. जैसे अब हमको एक बहुत सी एग्जांपल देती हूँ। बायजूस के बारे में पता है आपको? बायजूस एक Yes, ऐप ma'am. है स्टूडेंट के लिए, है ना? तो Yes, ma'am. वो उससे क्या होता है, स्टूडेंट अपनी सेल्फ लर्निंग करता है। वो सिर्फ क्या करता है, उसे इंस्ट्रक्ट करता है कि आपको इस तरीके से करना है। कोई भी टॉपिक वो स्टेप बाय स्टेप उससे एक्सप्लेन करता है, ठीक है। और जो भी क्वेरीज होती हैं वो भी उन्हें एक्सप्लेन किया जाता है। स्टूडेंट क्या करता है, वो सारी चीजें ग्रैप्स करता है, अंडरस्टूड करता है, उन चीजों को फॉलो करता है, और अपने घर बैठे जहाँ पे वो है वहीं पे क्या करता है, वो सारी चीजें लर्न कर सकता है। अंडरस्टूड? Yes, अंडरस्टूड? ma'am. जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ आई एम इन माई ओन प्लेस, आप अपने अपने प्लेसेस में हो। आई टीच यू, okay, I'll give you any task and I told you like that, do this one, do this calculation, after that you have to adding this calculation and that, now you have to tell what is the answer, okay. So it's a kind of the device, एक means एक indirect way है where the teacher teach the student, okay, not in a physical present, but indirectly they have to observe the student, they teach the student step by step systematically. Understood? जैसे हम ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, ऑनलाइन हम लोग आपके एग्जाम्स लेते हैं, या फिर ऑनलाइन हम आप लोगों के इवैल्यूएशंस करते हैं। एज आई टोल्ड यू दैट यू हैव टू
give the presentation. ठीक है, तो ये हमारी ऑनलाइन प्रेजेंटेशंस होंगी. So ऐसा डिवाइस जो क्या करता है, इंस्ट्रक्ट करता है प्रोग्राम को कि आपको कौन सी चीज किस तरीके से करनी है. And students should be familiar about this. Okay, so that they have to understood the new concept and what are the principle. Understood. इससे क्या होता है, what is the advantages of the program instructor? एक तो first of all, it is very interesting because they're new for the student. In that the student is kept active and alert because student को self करनी है. अभी देखो क्लास में क्या होता है, you all are sitting in a particular class, you are simply listening the lecture, and after completion of the lecture, then you just means there's not your responsibility whether you have to really you have to understood the topic or not, or whether you have to listen or not. But in the program instructor like that, they are instruct you. तो उसमें क्या आपका active participations है. That means you have to follow this one. Teacher get the relief of doing the ordinary job and she can play a role. जो भी जैसे for example in a classroom teaching में हमारा क्या होता है, supervision role है और आपका एक physical presence role है, that we have to observe the each student. Like social emotional problem can be eliminated. Okay, so some student having a fear, and because you are sitting and lying in your own place, so it's a comfortable environment for you. You can do anything in your place like that. Okay, then program structure make the learning interesting because इसमें क्या होता है कि एक प्रोग्राम मींस आपको एक ऑनलाइन प्लेसमेंट दिया जाता है जहाँ पे आपको इंस्ट्रक्ट किया जाता है, एंड देन यू हैव टू फॉलो दिस ऑल द इंस्ट्रक्शंस. सो इट्स अ काइंड ऑफ क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड creating the motivation among the motivation toward the means among the student toward the learning. Every student can work at his own place. So अपने अपने place से ही सब लोग learning करते हैं. More complex of the concept can be known. Okay. So this is a program instruction. Now the problem based learning. So what is the problem based learning? What is problem based learning? Pooja Karki. Yes, ma'am. Problem based learning. Ma'am, problem based learning basically human चलता है. तो अगर किसी भी ह्यूमन के लाइफ में अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो वो उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेगा और उसके बाद उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद वो क्या नॉलेज गेन करेगा. An example? मैम जैसे कि अगर पास्ट में अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई है और उसने किस वे में उसको सॉल्व किया है, वापस वही प्रॉब्लम रिपीट होने पे वो किस वे में सॉल्व करता है, क्योंकि एक्सपीरियंस गेन होगा तो जो पहले जो मिस्टेक्स की होंगी वो नेक्स्ट टाइम नहीं होंगी. एग्जैक्टली यानी कि किसी भी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने में हमें क्या बोलते हैं, एक लर्निंग मिलती है, हाउ टू शॉर्ट आउट दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स, whether the problem is a big or small, whether the problem is arising in your study side or in your personal life, where the problem will be arising in your family also. So you're having a different kind of experience, right? When you're facing first time any problems, that time that is actually your learning how to sort out the problem, so that the next time when you again facing that problem, you can easily sort out the problems. So the problem based learning can have a many different meaning depending upon the design of the education method employed and the skill of the lecture. Okay, so problem based learning is the means having a different kind of meaning, and it's also depend upon the design of education method, in which method we have to educate the student. Okay, to upbringing of their problem based learning, or the how we will develop the skill. Okay, like for example,
when you're first time posted in a clinical site, you're facing a different problem because you're just learning, just learn about the theoretical part of the particular instrument. Like आपको बोला जाता है कि that the cardiac monitor, in the cardiac monitor you we are actually observing the heart rate, pulse, bp, spo2, like that. Okay, when we are actually facing this scenario in a hospital site, when you are first time use or first time apply this applicants, तो दैट टाइम यू आर फेसिंग अ प्रॉब्लम बिकॉज आपको नहीं पता आप जो बीपी कप है वो किस तरह से करना है, या फिर आपको किस तरह से पेशेंट को प्रोब लगाना है, ठीक है, कैसे मॉनिटरिंग करनी है. दैट मीन वेन एवर यू आर डूइंग एनी काइंड ऑफ वर्क, ठीक है, फर्स्ट टाइम जो हम वर्क करते हैं वो हमारे प्रॉब्लम ही है बिकॉज वी डोंट नो हाउ टू हैंडल, वी डोंट नो हाउ टू डू, ठीक है. बट when we are facing that particular problem, we are learn so many things, we have to develop our skill. That's why I told you the clinical side में हर दिन एक learning है, even the till end of your clinical job. हर दिन हम कुछ नया सीखते हैं क्योंकि हर दिन ही करना कुछ नया हम फेस करते हैं. तो जब हम कुछ नया फेस करते हैं तो एक्चुअली वो हमारी लर्निंग है. The problem based learning is the complex mixture of the journal, philosophy, learning, and the goals and the techniques student value, all which difficult to regulate, are often well defined in the research report. Okay, according to the research report, when we the problem based learning is a mix of the different kind of the goal. When we are really want to achieve some goal, or when we are set some goals, तो सिर्फ goal set करना is not a kind of achieving the goal. When we are actually following the step-wise step to how to achieve the goal, when we are actually focus on our objective, that time we are facing the problem and then we are learn so many things. Okay, aims of the problem based learning, problem solving learning. Aim is a problem solving. First of all, we can easily sort out the problems. Okay, self directed learning, because प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब क्या होता है कि हम खुद से उस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर रहे हैं, ठीक है, हम लर्न कर रहे हैं कि किस तरीके से वो हमें शॉर्ट आउट करना है, ठीक है, किस तरीके से वो हमें करना है. तो वो क्या हमारा सेल्फ डायरेक्टिंग है, इंडिपेंडेंट लर्निंग है, नॉट अ डिपेंडेंट लर्निंग. अंडरस्टूड. जैसे फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट टाइम कार ड्राइव किया, आपने कार ड्राइविंग सीखा, लर्न किया, एंड देन फर्स्ट टाइम अपने ओन से कार ड्राइविंग की. That is a different experience as comparison to when you're learning the car driving. That is different experience because अब आप क्या कर रहे हो, सेल्फ डायरेक्टेड हो रहे हो, यानी कि अपने आप को एक डायरेक्शन दे रहे हो, उस डायरेक्शन के थ्रू अपनी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर रहे हैं. स्मॉल ग्रुप लर्निंग, ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल आपको पर्टिकुलर ग्रुप में एक टास्क दिया जाता है, यू हैव टू कंप्लीट दिस टास्क, ईच वन हैविंग देयर ओन task, own responsibility. Critical thinking skills should be developed, integrated of the different part of the curriculum. We can easily means the problem solving learning, like आपको कोई टास्क दिया जाता है, कम्युनिटी में जाके आपको कहा था कि स्पेशली इन द कम्युनिटी पोस्टिंग में आपको डिफरेंट डिफरेंट हाउसेस दिए जाते हैं, आपको वहां पर जाके पीपल से बात करना है, आपको पीपल को फेस करना है, उनकी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करना है, उनकी नीड को फाइंड आउट करना है. टीचर आपको सिर्फ ये बताते हैं यू दिस इज द परफॉर्मर एंड ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मर यू हैव टू फाइंड आउट द नीड ऑफ द पेशेंट. बट पेशेंट से नीड कैसे फाइंड आउट करनी है, उसे किस तरीके से कम्युनिकेट करना है, कैसे ट्रस्ट बिल्डअप करना है, वो सारी चीजें की आपकी सेल्फ डायरेक्शन है. राइट. Characteristic of the problem-based learning is it's a kind of challenging, open-ended problems. ठीक है, यहाँ पे कोई क्लोज एंडेड प्रॉब्लम नहीं है कि एक प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हुई तो आपकी सारी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएंगी. अंडरस्टूड. लर्निंग इज अ स्टूडेंट सेंटर्ड. सो ये स्टूडेंट कंप्लीटली स्टूडेंट सेंटर्स लर्निंग है, जिसमें स्टूडेंट क्या करता है, अपनी सेल्फ डायरेक्टिंग करता है, अपनी ओन वे से, अपनी ओन थिंकिंग से वो प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करता है. The student work in a small collaborative group. When we are giving any task to the students, so whatever their own responsibility, they have to complete their task with the collaboration of the team. ठीक है. न्यू इन्फॉर्मेशन इज एक्वायर्ड थ्रू द सेल्फ डायरेक्टिंग लर्निंग. जब हम खुद को डायरेक्ट करते हैं तो हमें कुछ नया सीखते हैं. जब भी कोई प्रॉब्लम शॉर्ट आउट करते हैं तो हम कुछ नया सीखते हैं. ठीक है. इट इंक्रीज द रिट्राइबिलिटी. इट प्रमोट द डीप लर्निंग इन स्टूडेंट.
It improved the presentation, feedback skill, promoting team working. Problem based learning help them to learn the comprehends new material more easily. ठीक है, तो जितना ज्यादा हम अपने आप को एक्सपोज करते हैं, ठीक है, उतना ज्यादा क्या होता है, एक्सपोज, जितना एक्सपोजर मिलता है उतनी लर्निंग होती है, बिकॉज जितना एक्सपोजर मिलता है उतनी हम न्यू चीज से एक्सपोज होते हैं, एंड वी आर लर्न सो मैनी थिंग्स, हाउ टू हैंडल द थिंग्स, how to sort out the problems when we are facing a problem, how we will self direct that time. Okay, हम self motivate होते हैं, एक independence feelings आती हैं, ठीक है, हमारी skill develop होती है, हमारा वे ऑफ प्रेजेंटेशन डेवलप होता है, व्हेन वी आर फर्स्ट टाइम प्रेजेंट द प्रेजेंटेशन इन फ्रंट ऑफ द क्लास, तो एक फेयर सा होता है, एक एंजाइटी होती है दैट टाइम, वो फेयर जब फर्स्ट टाइम होता है तो वो फेयर एंजाइटी रिड्यूस हो जाती है, जब सेकंड टाइम अगेन हम वो प्रेजेंटेशन देते हैं तो फेयर एंजाइटी नहीं होती, तो हमारे माइंड में होता है कि हाउ मीन्स इन अ गुड वे वी हैव टू प्रेजेंट द टॉपिक. ओके, देन थर्ड टाइम क्या होगा, हम प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, उसमें हम फोकस करते हैं कि मुझे अपने टॉपिक को इस वे में रिप्रेजेंट करना, तो धीरे धीरे क्या होता है, जो फोबिया, एंजाइटी, फेयर होता है ग्रुप को फेस करने का, वो चला जाता है, हमारा कंप्लीटली फोकस हमारे कंटेंट पे होता है कि मुझे कंटेंट को किस तरीके से प्रिपेयर करना है एक गुड प्रेजेंटेशन के लिए, क्योंकि आप अपने आप में अब एक कॉन्फिडेंस आ गया है, ठीक है. What is the disadvantage of the problem based learning? Style courses do not perform any better in national examinations. तो हम actually इस national examination के लिए ऐसे हम use नहीं कर सकते. Problem based learning does not promote the memorization of the factual material or for test. तो ये कोई आपका factual material provide नहीं करता. Student have to develop the skill consciously. तो स्टूडेंट में आते डेवलप होती है स्किल कॉन्शियसली, अगर वो अच्छे से उसमें फोकस नहीं करेगा तो समटाइम दे आर फेसिंग अ प्रॉब्लम. जैसे फॉर एग्जांपल आपको फोबिया है, आपको स्टेज फोबिया, आपको प्रेजेंटेशन नहीं देना, हम क्या करते हैं, स्टूडेंट को वी आर प्रोवाइडिंग द प्रेजेंटेशन, यू हैव टू गिव प्रेजेंटेशन. ओके, ईच स्टूडेंट इंडिपेंडेंटली दे हैव टू प्रेजेंट. सो समटाइम प्रेजेंटेशन हम तो देते हैं स्टूडेंट को, बट स्टूडेंट आर नॉट वेल प्रिपेयर्ड, एंड वो अपने आप को सेल्फ डायरेक्ट नहीं कर पाता. इट विल टेक मोर टाइम टू सेल्फ डायरेक्टिंग, बिकॉज डिपेंड अपॉन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको टिल फोर्थ ईयर तक स्टेज फोबिया होता है, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका फर्स्ट ईयर में ही फोबिया रिड्यूस जाता है, एंजाइटी रिड्यूस जाती है, दे आर वेल एक्सपोज देयर ओन सेल्फ इन फ्रंट ऑफ एनी पीपल्स. अंडरस्टूड? Okay, so thank you all. So understood this teaching method? Yes, ma'am. Understood to all. So can you tell me what is the best way of teaching? What is the best way of teaching? हमने इतने सारे मेथड्स पढ़े, कौन कौन से मेथड्स पढ़े हमने? वंशिका पुन. Ma'am, I'm asking to Vanshika Pun. Priyanka Jha. Priyanka Yadav. Yes, ma'am. yes, ma'am. बताओ, teaching method. What is the best way to teach the student? आपके अकॉर्डिंग बेस्ट वे क्या है? मैम जैसे डिफरेंट मेथड है तो डिपेंड करता है, हर एक मेथड हम यूज कर सकते हैं. जैसे ग्रुप डिस्कशन भी एक अच्छा मेथड है, और मतलब डिपेंड करता है हम क्या कर रहे हैं. जैसे किसी किसी में हमें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, मतलब प्रैक्टिकल नहीं, ये जैसे फील्ड ट्रिप है तो उसमें हमें प्रैक्टिकली हम चीजों को देखते हैं कैसे वो वर्कआउट करती हैं, तो वो भी एक अच्छा मेथड है. गुड. नंदिनी चौरसिया.
Yes, ma'am. Teaching method. बताओ। अच्छा बता दो कौन कौन से टीचिंग मेथड हमने लर्न किए। नहीं, चौरसिया। मोनिका, मोनिका रावत। Yes, ma'am. टीचिंग मेथड्स। मैम हमने ग्रुप डिस्कशन, सेमिनार, फील्ड ट्रिप, वर्कशॉप, एग्जीबिशन, प्रोजेक्ट मेथड, पैनल डिस्कशन, डेमोन्स्ट्रेशन, मैम ये सब मेथड डिस्कस करेंगे। ओके, व्हाट इज प्रोजेक्ट मेथड? यस मैम। व्हाट इज प्रोजेक्ट मेथड? मैम इसमें मैम स्टूडेंट को टीच करते हैं कोई भी कंटेंट के बारे में। ओके, जैसे कनुप्रिया। कनुप्रिया। यस मैम। प्रोजेक्ट मेथड। मैम उसमें हम एक हाँ बताओ। मैम एक प्रोजेक्ट मेथड में हम कुछ कंप्लीशन ऑफ वर्क करवाते हैं। क्या कंप्लीशन ऑफ वर्क करवाते हैं? मतलब हम एक सिचुएशन प्रोवाइड करते हैं और हम उसमें प्लान करते हैं एक प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करवाते हैं, फिर प्रोजेक्ट का इवैल्यूएशन होता है और रिकॉर्ड भी करते हैं प्रोजेक्ट को। ओके, तो आप कोई एग्जांपल दे सकते हो कैरिकुलम में हम कौन से प्रोजेक्ट करते हैं? कैरिकुलम में हम कौन से प्रोजेक्ट करते हैं? अरे मैंने आपको बताया था ना। ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है जिसमें हम डॉक्यूमेंटेशन, ऐसा कौन सा वर्क है जिसमें हम एट द एंड करने के बाद कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन करते हैं? उजाला। थीसिस। थीसिस, एग्जैक्टली। बीएससी लेवल में भी करते हो ना? एमएससी लेवल में भी करते हो? थीसिस करते हो अपनी? तो वो क्या आपके प्रोजेक्ट हैं जो आप इंडिपेंडेंटली इंडिविजुअली करते हैं या फिर ग्रुप में कंप्लीट करते हैं? अच्छा, उजाला। व्हाट इज सेमिनार? यस मैम। व्हाट इज सेमिनार? मैम सेमिनार एक टाइप का ग्रुप डिस्कशन ही होता है और इसमें मतलब जो इसमें डिस्कशन होता है इसमें
कुछ रिसर्च को लेकर या किसी नई इनोवेशन को लेके किसी मतलब लोग जो हैं एक्सपर्ट्स होते हैं वो डिस्कस करते हैं, और इसमें हमारे स्टूडेंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं। तो इन इनोवेशन और रिसर्च के थ्रू वो कुछ नए इनोवेटिव आइडियाज को क्रिएट करते हैं, और इससे उनका एक्सपीरियंस और लर्निंग भी इंक्रीज होती है। देखो बच्चे, जो सेमिनार होता है उसमें एक्चुअली क्या होता है कि जितने भी पर्सन जिन्होंने की कुछ न्यू इनोवेशन किया है, जो एक्सपीरियंस पर्सन है किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के बेसिस में, द प्रॉब्लम इज लाइक जो सोशल प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, उसके बेसिस में कोई टॉपिक के बेसिस में सेमिनार हम कंडक्ट कराते हैं। अगर हमारे पास कोई न्यू इन्फॉर्मेशन है या फिर कोई चेंजेस लेके आए हैं, हम क्लिनिकल में हम कोई चेंजेस लेके आए हैं, ठीक है, एक मिनट होल्ड करना प्लीज। मैं ऑडिबल? यस मैम। ओके, होल्ड पे चला गया था। एनीवे, सो सेमिनार हम तब ऑर्गेनाइज करते हैं, फॉर एग्जांपल वी आर ऑर्गेनाइजिंग सेमिनार ऑन द बेसिस ऑन द सोशल प्रॉब्लम्स, ओके। सो उसके रिगार्डिंग हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और उस इंफॉर्मेशन को हम प्रोवाइड करते हैं अनदर पर्सन को, टू शेयर द इंफॉर्मेशन, टू शेयर द आइडियाज, ओके। एंड इसके अलावा अगर हमने कोई भी ऐसा इनोवेशंस किया है या हमारे पास कुछ एक्सपीरियंस पर्सन्स है जिन्होंने इनोवेशन किया है या रिसर्च में पार्टिसिपेट किया है, जिसके थ्रू उन्होंने कोई क्लिनिकल प्रैक्टिस चेंज की है या कोई थ्योरी चेंज की है ऑन द बेसिस ऑफ द रिसर्च, तो वो इंफॉर्मेशन हम सेमिनार्स के थ्रू प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। सेमिनार्स हम तब भी ऑर्गेनाइज करते हैं, फॉर एग्जांपल व्हेन वी वांट टू चेंज समथिंग इन द करिकुलम, okay, when we are facing some problem like we are not completing syllabus according to the given time durations,
फॉर एग्जाम्पल हमें 160 आवर्स दिए गए हैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, टॉपिक इज लार्ज, इट्स लेंदी टॉपिक्स, ओके, एंड अकॉर्डिंग टू द आवर्स नॉट पॉसिबल टू कंप्लीट इन अ पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन, सो दैट वी हैव टू स्टार्ट द रिवीजन also. So what we have to do, or not only the one person is facing that particular problem, all the person who are belonging that particular field, they all are facing the same problem. So sort out from these problems, we will get the information and then we have to spread. ठीक है, सेमिनार्स के थ्रू हम लोगों को अवेयर करते हैं. सेमिनार इंफॉर्मेशन देने के लिए किया जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल ये तो मैं आपको कॉलेज लेवल सेमिनार बता रही हूँ, ठीक है. जैसे सोशल सेमिनार्स होते हैं सोसाइटी को अवेयर करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए, ठीक है. फीमेल्स एम्पावरमेंट के भी सेमिनार्स होते हैं, ठीक है, जहाँ पे आके जो पीपल्स होते हैं वो अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं, और जो मास्टर पीपल्स होते हैं जिनको उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में नॉलेज होता है, ठीक है, वो क्या करते हैं, उन सारी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करते हैं, उन्हें न्यू आइडियाज देते हैं. अंडरस्टूड? ठीक है. सो डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट सेमिनार ऑर्गेनाइज कराते हैं जस्ट बिकॉज टू शेयर द आइडियाज एंड द न्यू इन्फॉर्मेशन, स्पेशली द न्यू इन्फॉर्मेशन to the public, so that the each people should aware about their surrounding area. Understood? Yes, ma'am. Okay, then tomorrow you're having test, na? Yes, ma'am. Very good. थर्ड यूनिट का टेस्ट है आपका कल, पढ़ के आना. और टेस्ट में आपका लूंगी रिटन वे में, ठीक है, गूगल फॉर्म में, क्योंकि गूगल फॉर्म से अगर मैं टेस्ट लेती हूँ दैट आप लोग चीटिंग करते हो, तो इट्स बेटर हम रिटर्न में टेस्ट लेंगे. एक टाइम ड्यूरेशन में आपको दूंगी, विद इन अ टाइम ड्यूरेशन आपको मुझे वो सेंड करना है. अंडरस्टूड टू ऑल? और आप उस टाइम ड्यूरेशन Yes, में ma'am. सेंड नहीं करोगे. डोंट गिव मी एनी एक्सक्यूजेस लाइक मैम मेरा नेट नहीं था, मुझे आवाज नहीं आ रही थी, या फिर मैं घर पे नहीं थी, वट मुझे वो टाइम ड्यूरेशन में, मेरे टाइम के ड्यूरेशन में ही कंप्लीट चाहिए, 1:15 to 2:15. ठीक है, तो थर्ड यूनिट अच्छे से पढ़ के आना. मैम फिर क्लास तो ज्वाइन नहीं करना ना? मैं आपको सेंड कर दूंगी, क्लास ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, बस आपको उतने ड्यूरेशन में मुझे सेंड करना है. ओके मैम. क्वेश्चन है इसमें वो सेंड कर दूंगी. ठीक है. ओके मैम. ठीक है. इज देयर एनी अनदर प्रॉब्लम? एनी अदर प्रॉब्लम लाइक नोट्स कंप्लीट हो गए आप लोगों के? यस मैम. मैंने आपको पीपीटी सेंड कर दी थी सारी. मैम लास्ट यूनिट का नहीं किया शायद. ओके, ठीक है, मुझे एक बार रिमाइंड करवा देना. देन टुमारो और टुडे ओनली टिल इवनिंग आई विल सेंड ऑल पीपीटीज. ओके, and be prepared for the presentation, because from Monday onwards we'll start the presentation. Okay, so according to your roll number, be ready. Understood to all? रोल नंबर यस मैम. वन कौन है? अंशिका, आयुषी, ये होंगे. रोल नंबर 1. उजाला, रोल नंबर 1 कौन है? मैम अचला है. अचला प्रेजेंट नहीं है इसमें? यस मैम, प्रेजेंट. प्रेजेंट है अचला. ओके, सो आपका प्रेजेंटेशन, आपको पता नहीं आपका रोल नंबर 1 है? हाँ जी हाँ. बड़ी जल्दी पता चला. Anyway, मैम बोला तो prepare for Monday, okay? You have to present your the presentation on Monday. So prepare your PPT. If you have any doubt, any query, before Monday only you have to ask. Otherwise, उसके बाद आप कुछ नहीं पूछोगे. Monday को आपको present करना है. You and another roll number 2. Roll number 2. उजाला, रोल नंबर 2 कौन है? मैम अंशिका है. अंशिका प्रेजेंट नहीं है? नो मैम. Just inform to Anshika, otherwise I'll put absent only.
ठीक है, और मैं इवैल्यूएशन भी 0 कर दूंगी। देन रोल नंबर 3, 4 प्रिपेयर रहना। गंशिका नहीं आएगी Okay, तो ma'am. थर्ड नहीं आएगा तो 4। हु इज थर्ड? आराधना. आराधना प्रेजेंट है? Yes, ma'am. हाँ, तो आराधना बी रेडी। ओके Okay, ma'am. ओके देन ठीक है। ओके फिर थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू ऑल।